Good afternoon, students. In this lecture, we will discuss about the midpoint circle drawing algorithm in computer graphics. So, in the last lecture, we already discussed about the line drawing algorithm, Bressenham's algorithm. So, this algorithm is similar to the Bressenham algorithm, but there are some changes. So, let's start with the midpoint circle drawing algorithm. It is the algorithm which is used to determine the points needed for rasterizing a circle. So what is the rasterization? We have some vector image. So the transformation from the vector image to the raster image is known as the rasterization. So we have to calculate each point position, and so that the pixel positions are to be determined, and we can draw any line or any circle. So that process is known as the rasterization. So in the previous we know about the line drawing में क्या है कि straight line होगी, but in case of circle which point are to be selected when we draw a circle. So the midpoint algorithm is to be used to calculate all the perimeter points of the circle in the first octet. So before that we will discuss about this complete about the circle. So when we draw any circle, if we have the x-axis and the y-axis, and we draw the circle around this, so we have to know about the basics of that. So in this case, there are the positive, this is the x-axis and this is the y-axis. Here this is the negative side of x and this is the negative side of y coordinate. So completely there are the four parts. This is first part, first side, this is the first side, this is the second, third, and the fourth. These four parts are known as the quadrant of the circle. So each quadrant is equally divided into two parts, divided by the 45-degree angle, and each part is equally divided. So these parts are known as the octant. So एक पार्टीशन को हमने दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, एक क्वाड्रेंट को दो ऑक्टेंट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक क्वाड्रेंट का जो है दो दो ऑक्टेंट हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 8 ऑक्टेंट आ गए. क्लियर. दो दो इसके, दो इस पार्ट के, दो इस पार्ट के, टोटल 8 पार्ट हो गए. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द 8-वे सिमेट्री ऑफ अ सर्कल और ऑक्टेंट ऑफ सर्कल. 8-वे और 8-वे सिमेट्री ये बोल देते हैं. तो इन दिस algorithm we will take the 8-way symmetry algorithm. So 8-way symmetry circle. So symmetry property को ये फॉलो करता है. symmetry property क्या है? If we know about one point, we can calculate the other points of the circle. If we know that this is the y comma x point, so symmetry में क्या है, symmetry क्या होता है, if this is y comma x, the next point is the opposite of this, x comma y. This is the symmetry. अगर ये y comma x है, on the opposite side, negative side में क्या है, minus y comma x. This is the symmetry part. So by knowing this point, next point is also calculated. So this is the negative side of x, minus x comma other side क्या होगी, y. This is the y axis. So next again हम इसके साथ calculate कर सकते. This is the negative side of both the x axis and y axis, negative x minus negative y. So by knowing one point, we can easily calculate the other points also. This is a symmetry property. So we have to use this algorithm, midpoint algorithm, to calculate all the perimeter points, all the points of the octant. So we have to calculate the first octant point. ये सारे पॉइंट अगर कैलकुलेट हो जाते हैं, जो फर्स्ट ऑक्टेंट पार्ट जो है वो कवर हो जाता है, तो नेक्स्ट क्या है, हाँ उसके ऑपोजिट हो जाएंगे. क्लियर. सो अगर इस क्वाड्रेंट के पॉइंट्स पता लग गए तो नेक्स्ट वाले के भी पॉइंट पता लग जाएंगे, उससे नेक्स्ट वाले के भी. सो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली वन पार्ट. अदर पार्ट्स जो है वो साइन चेंज करके हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं.
So this will work because a circle is symmetric about its center. सो सेंटर पे सिमेट्रिक होता है बिकॉज सर्कल की जब हम बात करते हैं तो सर्कल में क्या है, एक रेडियस होता है, दैट यू ऑलरेडी नो डैट पॉइंट्स गिवन होंगे एक्स कॉमा वाई एंड थर्ड वन इज द रेडियस. रेडियस जो है वो सेम डिग्री पे होगा, सेम वैल्यू होगी. अगर रेडियस 5 है तो यहाँ पर रेडियस क्या है, मिडल पॉइंट. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट क्या होगा, सेम, आर इज सेम, दैट इज 5. यहाँ से लेके दिस कॉर्नर तक, दिस इज आर, ऑल्सो आर, दैट इज 5. दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5. सो सर्कल तभी इक्वली ड्रॉ होगा. तो बाय नोइंग वन वैल्यू, अगर रेडियस गिवन है एंड देन वी इजिली कैलकुलेट ऑल द पॉइंट्स. अगर एक पॉइंट गिवन है देन वी कैन इजिली कैलकुलेट ऑल द पॉइंट्स. सो the main problem which is used for drawing a circle by using the midpoint algorithm. so इसमें क्या है कि हम कोई पॉइंट जो है x के एंड y के प्लॉट करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट कैसे प्लॉट होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट अगर प्लॉट करना है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रीन. तो स्क्रीन पे ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो हर एक पिक्सल को यहाँ पर एक सर्कल से ड्रॉ किया है, स्मॉल सर्कल से. सो कोई भी जब हम सर्कल, एक्चुअल सर्कल हम ड्रॉ करेंगे ऑन डैट स्क्रीन, यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल ये लाइन आ रही है सर्कल की, यहाँ से स्टार्ट हुई इस साइड पे जा रही है, तो फर्स्ट तो पॉइंट ये सिलेक्ट हो गया, डेट इज एक्स के वाई के, दिस इज द करंट पॉइंट, करंट पोजिशन ऑफ डैट पिक्सल. सो नेक्स्ट जो है यहाँ से जा रहा है, तो अब हमने ये वाला पिक्सल सेलेक्ट करना है या ये कैसे पता चलेगा, वो हम कैसे करेंगे. ब्रेसनहैम में क्या था कि लाइन थी, तो वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते थे, देन हम पिक्सल सेलेक्ट करते, विच पिक्सल इज़ टू बी सिलेक्टेड. तो उसके लिए क्या था, डिस्टेंस अबव एंड डिस्टेंस बिलो कैलकुलेट करके जिसका नियर बाय कम डिस्टेंस आया उस पिक्सल को हम सेलेक्ट कर लेते थे. बट यहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे, एक मिडल वैल्यू, मिड निकाल लेंगे उसका. अगर दोनों पिक्सल्स में मिड निकालना है, ठीक है, तो मिडल वैल्यू अगर अंदर आ रही है देन वो क्या है, इनसाइड द सर्कल बाउंड्री. अगर मिडल वैल्यू जो है, मिड जो है, अगर यही लाइन यहाँ आती तो उसके हिसाब से मिड क्या होगा, ऊपर चलेगा जाएगा, डेट इज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन. तो जब आउटसाइड द बाउंड्री लाइन होगा देन कौन सा पिक्सल सेलेक्ट होगा, डेट वी विल डिस्कस. सो दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ द पिक्सल एक्स के वाई के. तो नेक्स्ट क्या क्या ऑप्शंस आ सकती हैं, आइदर दिस पिक्सल इज टू बी सिलेक्टेड और दिस पिक्सल इज टू बी सिलेक्टेड. दिस इज फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है, इस साइड पे आ रहे हैं तो x क्या होगी, इंक्रीमेंट हो रही है, दिस इज एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई रिमेन्स द सेम, y यहाँ पर है तो y यहाँ पर ये वाले पिक्सल के लिए y रिमेन्स द सेम. सो y के, तो सेकंड पोजीशन क्या है, अगर इस साइड को इंक्रीमेंट करें हैं तो x में इंक्रीमेंट एक्स के प्लस 1, और y के अगर ये है तो नीचे को जब आएंगे तो डिक्रीमेंट होगी वैल्यू. अगर वाई एक्सिस यहाँ पर है 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर जा रहे हैं, जब नीचे आएंगे तो डिक्रीमेंट होगी. तो यहाँ पर क्या आ गया, वाई के माइनस 1. सो वी हैव द 2 ऑप्शंस. सो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है. सो उसके लिए क्या है, हमने पॉइंट जो है वो चेक करना है. अगर लेस देन 0 आया देन y इक्वल्स टू वाई के, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन वाई के माइनस 1. सो how this is to be checked, this point is to be checked और how this is to be calculated, इसके लिए भी क्या है, हम derivation करेंगे. so we would like to choose the point which is nearest to the actual circle. so what will we make the choice. so p नॉट लेस देन 0 का क्या मीनिंग है, दिस वैल्यू. अगर p नॉट लेस देन 0 है तो विच मीन्स दैट आउटसाइड पिक्सल इज टू बी सिलेक्टेड. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है पॉइंट की वैल्यू देन क्या होगा, इनसाइड पिक्सल इज टू बी सिलेक्टेड, दैट इज वाई के माइनस 1. सो वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज
represented by the f, that is the functions of circle. Function of x comma y is equal to x square plus y square minus r square. This is the equation of the circle when the origin is 0 comma 0. इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र. सो हमने आर स्क्र यहाँ पर क्या कर दिया, इस साइड पे जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र को एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए तो वो नेगेटिव बन गया, माइनस आर स्क्र दैट इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन के हिसाब से फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई for the circle is x square plus y square minus r square. So any point which is on the boundary is satisfied, that is equal to 0 if the point is inside the circle function value is negative. अगर point जो है inside the circle value है, यहाँ पर inside the value है, point middle point is inside the circle boundary then the point is negative. अगर outside है तो positive है. Clear? Then we have the conditions less than 0, f of if x comma y is inside the circle boundary, equal to 0 is on the circle boundary and greater than 0 is outside the circle boundary. Clear? So next we calculate the function at the midpoint between the candidate pixels. We can make our decision. We have the two choices already discussed that. So in order to calculate the point, we have to first of all we have to calculate the midpoint of that pixel. So midpoint हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पिक्सल प्लस सेकेंड पिक्सल वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. सो यहाँ पर टू कोऑर्डिनेट वैल्यू है, टू कंडीशन है, एक्स के प्लस वन, दूसरी क्या है एक्स के प्लस वन. दोनों को प्लस किया, 2x के प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया x के प्लस 1. क्लियर? तो सेकंड क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y के माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम y के माइनस 1 बाई 2. सो by using this we have to put these values. अब x की वैल्यू क्या बन गई, दिस वन, एंड y की वैल्यू क्या बन गई, ये y के माइनस 1 बाई 2. सो दिस x एंड y वैल्यू इज सब्सटीट्यूटेड इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस आर स्क्र. सो x की जगह पर क्या पुट कर देना है, एक्स के प्लस 1 स्क्र प्लस y की जगह पर y के माइनस 1 बाई 2 स्क्र माइनस आर एज इट इज. So if pk less than 0, the midpoint is inside the circle, the pixel at yk is closer to the circle. अगर inside आता है then circle के closer है, otherwise the midpoint is outside and yk minus 1 is closer. ठीक है, तो दोनों में से कौन सा select होगा, depend upon the pk value. अगर lesser है then the yk is to be selected, अगर ग्रेटर है देन y के माइनस 1 इज टू बी सिलेक्टेड, जो नीचे वाला पिक्सल है, इनर साइड पे है. सो द डेरिवेशन विल स्टार्ट. वी हैव टू कैलकुलेट नाउ पी के प्लस 1. वी ऑलरेडी कैलकुलेट पी के वैल्यू. देन द नेक्स्ट, अगर इनिशियल पॉइंट हमें पता है तो नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए डेरिवेशन है ये. तो उसके लिए क्या है, पी के प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर एक्स के था, वहाँ पर के था सिंपल, उसे के प्लस 1 कर दो. देन क्या है, सेम आगे क्या किया हमने, उसको सेम किस में पुट किया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल. नाउ जो फाइनल ये पी के आ गया, पी के प्लस 1 आ गया. नाउ हमने क्या करना है, जो सेकेंड वैल्यू है पी के प्लस 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो इनिशियल वैल्यू है डेट इज़ पॉइंट पी के. सो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डेरिवेशन को सॉल्व किया, तो फाइनल हमारे पास डेरिवेशन यहाँ पर आ गई पी के प्लस 2x के प्लस 1 y के प्लस 1 माइनस y के स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू. सो यहाँ पर आगे हमने क्या किया, ये हमारे पास की पी के प्लस 1 आ गया. तो अगर हमारे पास, अगर ओरिजिन की बात करते हैं हम कि सर्कल की इक्वेशन क्या है, जब हमारे पास ओरिजिन क्या है 0,0. सो वी हैव द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर which is obtained by evaluating the circle function at the starting position, that is x naught comma y naught equals to 0 comma r. तो इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी, इनिशियल पैरामीटर वैल्यू कौन सी होगी,
0, आर, जो रेडियस होगा वही क्या हमारे बन जाएंगे इनिशियल पॉइंट। सो उसको 0, आर को हमने क्या किया, अब पी के में फिल किया, पी नॉट पॉइंट में फिल किया। पी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सर्कल 0 + 1, आर - 1/2। जो यहाँ पर पी के वैल्यू थी यहाँ पर 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट करने के बाद फाइनल हमारे पास पी नॉट की वैल्यू के आगे 5/4 -r, विच इज़ ऑल्सो रिटन एज 1.25, और 0.25 ऑल्सो इग्नोर्ड और रिजेक्टेड टू सिंप्लिसिटी, बिकॉज 0.2 है तो 0.5 से लेस है तो हम उसे 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ 5/4 भी कंसिडर कर लो, जहाँ 1.25 कंसिडर कर लो। सो दिस इज द होल प्रोसीजर टू कैलकुलेट द पी नॉट वैल्यू। सो this is the algorithm which will work. So we have the input value अगर सिर्फ रेडियस गिवन है, numerical is draw a circle whose radius is r equal to 5, so by using the midpoint circle algorithm. So उसके लिए क्या है कि सिर्फ r ही गिवन है तो कैसे कैलकुलेट होंगे पॉइंट। सो फर्स्ट स्टेप इज x0, y0 इक्वल्स टू 0, r, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया 0, 5 बन जाएगा जो जितना भी हमें रेडियस गिवन है। सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर, डेट इज पी नॉट इक्वल टू 5/4 - r, जो ऑलरेडी हमने निकाला यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एट ईच x के पोजिशन, जब हम x को आगे इंक्रीमेंट करेंगे स्टार्टिंग एट k इक्वल्स टू 0, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पर पी नॉट निकाला, अगर पी नॉट की वैल्यू लेस देन 0 है then next point will be centered on 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, y remains द सेम। किस केस में, जब p नॉट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो x इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0, 5 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू क्या होगी सेम, डेट इज़ 5। एंड पी के प्लस, नेक्स्ट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1 + 1। क्लियर। सो अदरवाइज अगर पी के ग्रेटर देन 0 है देन क्या करना है, एक्स में भी इंक्रीमेंट बट वाई में डिक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट कम कर देंगे। देन पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1 + 1 - 2 वाई के प्लस 1। अब ये 2x के प्लस 1 एंड 2y के प्लस 1 क्या है, ये वैल्यू कहाँ से पता चलेगी। सो पुट दीज वैल्यूज एज 2x के प्लस 1 को हम क्या पुट करेंगे, 2x के प्लस 2, x के क्या है जो इनिशियल पैरामीटर होंगे, इनिशियली जो आगे से आगे कोऑर्डिनेट जो निकलते जाएंगे। देन 2y के प्लस 1 बिकम्स 2y के -2, तो ये वैल्यूज हम याद रखनी है। सो देन डिटर्मिन द ऑल द पॉइंट्स एंड देन ये स्टेप कहाँ तक करते जाना है, जब तक हमारी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y नहीं बन जाता। क्लियर। यहाँ पर ये स्टेप कब तक करते जाने हैं, पॉइंट कब तक कैलकुलेट करते जाना है, टू चेक द कंडीशन। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया तब तक करते जाना है, अगर नहीं देन हमने स्टॉप कर जाना है। देन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट पॉइंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल।